Good morning, boys and girls. Today, let us try to discuss present perfect tense. So, far previous lectures are concerned, we discussed present simple, its formation and usage, and then we discussed present continuous tense with its formation and usage. Today, we will be discussing present perfect tense with its formation and its usage. First, see these two sentences that are displayed on your screen. The first one is he has just gone out. He has just gone out. I have just eaten food. This is basically present perfect construction. This is structure which is, where you will find that subject is there, and then you are finding an auxiliary is there, and then you have your man verb. In the first sentence, you have man verb as gone, and your auxiliary is has. And in the second sentence, you are finding that your auxiliary changes from has to have, and again you have your man verb as eaten. Let us see here formation, how we are able to form present perfect tense. First of all, we are using a subject. As I said, it is simply the doer, or you can say, when you say doer is simply uh, that works, that does his work, right? And then in other terms, you can say it is either person or can be anything, right? Now you have subjects. Some are used as subjective case, and some subjects are used as objective cases, right? But here I will simply stuck myself to this particular construction. This is simply you are using subject, just like in the above sentence first you are using he, right? And then you are using you have auxiliaries have and has auxiliary you are using with third person singular. If you talk of have, rest whatever remains you are using have, ठीक है? पहले वाले हैज़ को हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव को यूज़ करते हैं रेस्ट जो कुछ हमारे पास रहता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ हैज़ इस्तेमाल होगा, और जो बाकी है थर्ड पर्सन प्लूरल उसके साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? जिसके लिए कंस्ट्रक्शन बनेगी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से मेरा मतलब है कि हैव हैज़ के साथ हम V5 का इस्तेमाल करते हैं। V5 से मेरा मकसद और मुराद ये है जिसको आपने EN फॉर्म पढ़ा है, या जिसको हम परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, राइट? और उसका दूसरा नाम हम टेक्निकल नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम यूज़ करते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाए या V5 यूज़ किया जाए तो ऐसी कंस्ट्रक्शन जो होगी इट इज़ कंसीडर्ड टू बी एफर्मेटिव। ये कंस्ट्रक्शन जो होगी ये प्रेजेंट परफेक्ट की होगी, ठीक है? अब एफर्मेटिव सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव या हैज़ का इस्तेमाल होगा, और साथ में V5 किसी भी सूरत में यूज़ होगा, और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बचेगा दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है? Affirmative sentence, as I said, I am again repeating it. It is simply a sentence that is used to state some sort of statement, right? किसी तरीके की स्टेटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब देखिए इसी का जिसको हम इसको नेगेट करते हैं, इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेगेटिव के लिए भी पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, फिर हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंड्स ऑन ऑन द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कौन सा यूज़ होगा, और इसी ऑक्सिलरी के साथ जिसको हैव या हैज़ कहते हैं हम, इसी ऑक्सिलरी के साथ इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और इसके साथ यूज़ होगा फिर V5 पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? और ये प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होगा, और ये जो कंस्ट्रक्शन होगी ये होगी नेगेटिव सेंटेंस की, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। जिस वक्त आप एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव को मिलाते हैं हमारे पास और एक सेंटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, राइट? assertive sentence other word simply a sentence where you are using जहाँ पर आप क्या करते हैं, it is used for statements, whether the statements are negative or positive that hardly matters, right? now ये असल में आपने जहन में रखना है कि इसमें ऐसी सूरत हाल होती है, तो
यहाँ पे देखिए आप अब देखिए और एक चीज़, ये हमारे पास सेंटेंस 3 पे आ जाइए आप। इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में? पहले आप हैव का इस्तेमाल करते हैं या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब है ऑक्सिलरी को लाएंगे आप पहले स्टार्ट पर, उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद V5 का इस्तेमाल होगा, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो जिसके ये कंस्ट्रक्शन होगी, ये है इंट्रागेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो ये हम इंट्रागेटिव इसी हिसाब से बनाएंगे। हम देखेंगे इन सेंटेंस को नीचे, अभी यहाँ इसके ऊपर भी बात करेंगे हम, लेकिन अब आप सरसरी नज़र डुलाएं जिसको तो आप सेंटेंस 4 को देखते हैं, जिसको हम नेगेटिव इंट्रागेटिव कहते हैं। पहले हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो प्लस V5 इस्तेमाल होगा, तो जिसको तो आप हैव, हैज़ और नॉट का इस्तेमाल करेंगे, या हैज़ नॉट, हैव नॉट, और फिर सब्जेक्ट करेंगे जो भी कुछ होगा, किसी भी तरीके का सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड हो, थर्ड हो, या सिंगुलर, प्लूरल, वट एवर इट इज़, राइट। प्लस इसमें भी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन बनेगी नेगेटिव इंट्रागेटिव की। नेगेटिव इंट्रागेटिव की और एक शक्ल सूरत ये है कि आप हैव या ऑब्लिक हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसमें नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस V5 इस्तेमाल करेंगे, ये कंस्ट्रक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये बनेगा नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन क्लियरली होगी नेगेटिव इंट्रागेटिव की। अब देखिए चंद सेंटेंसेस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर बेटर। हियर आर सर्टन एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स सिंपली फॉर यू। नाउ सी दिस, शी हैज संग ए सॉन्ग। एफर्मेटिव सेंटेंस, शी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ आपका ऑक्सिलरी है, संग जो है पहले होता है सिंग, फिर होता है सिंग्स, सिंग बेस फॉर्म, सिंग्स एस फॉर्म, फिर आप करते हैं सैंग इस्तेमाल, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और V3। ठीक है, फिर आप सिंगिंग इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर करते हैं आप संग इस्तेमाल, SUNG संग, संग आपका परफेक्टिव फॉर्म है, राइट, परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, और व्हाट इज कॉल्ड V5, और इन अदर वर्ड्स पास्ट पार्टिसिपल, ये कंस्ट्रक्शन, शी हैज़ संग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन होगी ये एफर्मेटिव सेंटेंस की होगी। ठीक है, शी हैज़ संग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये असल में इसी हिसाब से सेंटेंसेस बनते हैं परफेक्टिव में। परफेक्टिव की क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की? प्रेजेंट परफेक्ट की आप पहचान बहुत आसान है, इसमें हैव या हैज़ की ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगी एट एनी कास्ट, और साथ में इसमें V5 का इस्तेमाल होगा। जिस भी सेंटेंस में हैज़ हैव इस्तेमाल होगा और V5 यूज़ होगा तो ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन होगी दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, नाउ सी अनदर सेंटेंस, आई हैव नॉट ईटन ए केक। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया, मैंने इसको इसी एक ही स्ट्रक्चर पे नहीं रखा, थोड़ा चेंज करके दिया ताकि आप बच्चे अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वो आपका जो ऑक्सिलरी थी वो चेंज हो गई, हैज़ से हैव बन गया। ठीक है, और फिर आपने इसमें नॉट लगाया, आई हैव नॉट ईटन आपका V5 केस है, पास्ट पार्टिसिपल है, एंड ए केक, आई हैव नॉट ईटन ए केक, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब एफर्मेटिव और नेगेटिव को जिसको आप मिलाएंगे तो ये एक और कंस्ट्रक्शन बनेगी जिसको आप बोलेंगे एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव में दोनों एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा सेंटेंस, हैज़ शी संग ए सॉन्ग। पहले आपने हैज़ इस्तेमाल किया, हैज़ इस वजह से इस्तेमाल किया चूँकि आपने शी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल होगा, और संग जो है ये आपका V5 केस है, ए सॉन्ग, तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस बनता है, हैज़ शी संग ए सॉन्ग। यू अंडरस्टैंड, तो ये आपका बनेगा इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब देखिए दूसरा वाला, हैवेंट आई प्लेड हॉकी, नेगेटिव इंट्रागेटिव, हैवेंट आई प्लेड, हैव का सीधा नेगेट करने के लिए हैव नॉट हमने यूज़ किया, और फिर आई किया, यानी कंट्रैक्शन फॉर्म की या आप जिसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया, तो हैवेंट बना दिया हमने, अदरवाइज़ हैव नॉट है। ठीक है, और आई इस्तेमाल हुआ, आई के साथ हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, आई आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर आपके पास मैन वर्ब जो आपका है वो है प्लेड, और ये V5 केस है, और फिर हॉकी है। ठीक है, नाउन, तो ये बन गया हैवेंट आई प्लेड हॉकी, ये आपका नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस बना। ठीक है, या इस कंस्ट्रक्शन को हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। हम पहले हैव का इस्तेमाल करेंगे,
हैव बॉयज़, बॉयज़ होगा प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल। फिर आपने नॉट का इस्तेमाल किया, फिर आपने प्लेड इस्तेमाल किया, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल है, ये V3 वाली फॉर्म नहीं है, ठीक है। V3 वाली फॉर्म इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियसली V5 है। और फिर आपका हॉकी, हैव बॉयज़ नॉट प्लेड हॉकी, ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना, ठीक है। एंड आई बिलीव ये कंस्ट्रक्शन जो है विद रिगार्ड टू प्रेजेंट परफेक्ट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो इस वजह से आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसकी फॉर्मेशन में, इसकी कंस्ट्रक्शन में या इसकी आइडेंटिफिकेशन में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है वो है इसकी यूजेज का। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है इसका यूज़, हाउ वी आर एबल टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड विच ऑन विच कंडीशंस वी आर यूजिंग इट। अब देखिए यहाँ पर यूज़, अब पहले वाले दो सेंटेंस जो हमने पहले रिफ्लेक्ट किए थे उन्हीं को हमने दोबारा इधर रखा है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, आई हैव जस्ट ईटन फूड। अब देखिए लफ्ज़ जस्ट, आई हैव जस्ट ईटन फूड, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब क्या है ये जो सूरत हाल है, जो शक्ल आपके सामने पड़ी हुई है, ये असल में क्या है, ये हम करते हैं यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट को जिस वक्त आपकी एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। मरकब इन द इमीडिएट पास्ट और यू कैन से इन द रिसेंट पास्ट, और जब इसके बाद हम ऐसी हालत में हम जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब जब भी आप जस्ट को यूज़ करेंगे तो मोस्टली जो सेंटेंस बनेगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, कंप्लीटेड एक्शन और कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट थोड़ा सा पहले, उसका मतलब है, इसको जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे या आपको बताएंगे क्या मतलब है इसका, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी चला गया है, अभी चला गया है। उसका मतलब है इस वक्त घर में नहीं है, इस वक्त ऑफिस में नहीं है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी चला, ऑफिस में नहीं है, वो अभी बाहर चला गया है, ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए तभी मैंने बताया टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, जो कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है इन द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट हम इसी को कहते हैं, एक्चुअली पास्ट नहीं है, बुनियादी तौर ये प्रेजेंट ही है, तभी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। रिमेंबर, ये पास्ट नहीं है, पास्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, ये असल में प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट को किस शक्ल सूरत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये रीसेंट पास्ट जिसको बोलेंगे आप, तो उसके लिए यूज़ हुए ये सेंटेंसेस। और विद जस्ट हमने ब्रैकेट में इस वजह से लिखा ताकि आपके जहन में ये रहे कि जब कभी भी जस्ट यूज़ होता हुआ होगा किसी सेंटेंस में, तो ऐसी हालत में होगा कि हम इसको ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही तस्वर करेंगे, राइट। ओके, नाउ सी सम अदर सेंटेंसेस एज वेल। आपके पास और एक कंडीशन देखिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैव यू रेड हैमलेट? हैमलेट शेक्सपियर का मशहूर वेरी फेमस ट्रेजेडी एंड वन ऑफ द रिमार्केबल ड्रामाज, तो प्ले, वो असल में उस वो ये हैमलेट। तो हैव यू रेड हैमलेट, ये क्वेश्चन बनाया गया है और ये बनाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव है आपके पास पहले, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यू है, फिर रेड है V5, ये V5 फॉर्म है, ठीक है, और फिर हैमलेट। हैव यू रेड हैमलेट, क्या आपने हैमलेट पढ़ा, यानी हैमलेट का जो प्ले है क्या आपने मुकम्मल किया, क्या आपने वो पढ़ा, एक्चुअली आइडिया ये है, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, वी हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, वी हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, वी हैव नेवर नोन, हमने कभी इसको नहीं जाना, हिम टू बी एंग्री, ठीक है, कि वो इतना गुस्से वाला है, हमने कभी ये जाना ही नहीं ये बात कि वो इतना गुस्से वाला है। क्या मतलब है इसका, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, ठीक है, जिस वक्त आप पास्ट एक्शन को कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी टाइम, टाइम आपका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हमने ऐसे नहीं बताया हैव यू रेड हैमलेट यस्टरडे, ये फिर गलत होता सेंटेंस, ठीक है। या वी हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री फॉर लास्ट 6 days, राइट। तो ऐसा नहीं है क्योंकि टाइम रेफरेंस इसमें नहीं है। अगेन सी दिस, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन एंड नॉट डिफाइन इट, न टाइम दिया गया है न डिफाइन किया गया है, तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम बताएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप टाइम रेफरेंस से काम नहीं लेंगे, ठीक है, या एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ नहीं करेंगे। तभी हैव यू रेड हैमलेट मतलब यह है कि कोई शख्स है वो हैमलेट पढ़ रहा था
उसने कंप्लीट किया या नहीं किया, तो उसी के बारे में क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। अब देखिए और एक चीज़, और एक इम्पॉर्टेंट मामला, ये देखिए सर्टन सेंटेंसेस, गौहर हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, गौहर हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, गौहर ने सारे बिस्किट खा लिए। इसका क्या मतलब है, देयर आर नॉट एनी लेफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए अब कोई बिस्किट बचा नहीं है। गौहर हैड ईटन ऑल द बिस्किट्स, उसने अभी ये सारे बिस्किट खा लिए, थोड़ा सा पहले टाइम उसने सारे खा लिए, अब तुम्हारे लिए कोई बिस्किट बचा नहीं है, ठीक है। उसका मतलब जो अभी होता है ना, इमीडिएट रिसेंट पास्ट में जो एक्शन होती है और वो कंप्लीट होनी चाहिए वो एक्शन, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। देखिए, आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, मेरी अंगुली ज़ख्मी हो चुकी है, मैंने अपनी उंगली को काट दिया, तो इससे क्या हुआ, एंड इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, ऐसी कटी है कि अब खून तो बह रहा है, इसको क्या बह रहा है, खून बह रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, खून जिसको बह रहा है, अंगुली ऑलरेडी कट चुकी है, कितना टाइम पहले कट चुकी है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इसी के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई हैव कट, हैव ऑक्सिलरी है आपका, है, आई आपका सब्जेक्ट है, और जो कट है ये V5 फॉर्म वाला कट है, ठीक है। अदरवाइज कट का बेस भी कट है, कट की एस फॉर्म कट्स होगी, फिर इसका पास्ट फॉर्म भी कट होगा, फिर इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म कटिंग होगी, फिर इसका परफेक्टिव फॉर्म कट ही होगा, ठीक है। तो उसका मतलब है जिसको हम वर्ब को डिस्प्ले करते हैं, कट को, कट 3 बार आता है, जिसको हम 5 इन टर्म्स ऑफ 5 फॉर्म्स इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये लास्ट वाली फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट वाली, परफेक्टिव वाली फॉर्म, जिसको आप V5 कहते हैं, या जिसको आप बताएंगे परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया, उसका मतलब है अब वो फ्री हैं, उन्होंने काम कर लिया है, अब वो फ्री हैं। नाउ दे आर फ्री, तभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे सामने दी गई है सिचुएशन कि अब वो फ्री हैं, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो क्या मतलब है इसका, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट दैन ऑफ द एक्शन इट्सेल्फ, ठीक है। आपको प्रेजेंट में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पे आपको इस एक्शन का कोई ना कोई इफ़ेक्ट दिखता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, आई हैव कट माई फिंगर, उंगली कटी है, प्रेजेंट का इफेक्ट क्या है, इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, ये अब खून बह रहा है, अंगुली तो कट चुकी है, खून बह रहा है, ये है प्रेजेंट का इफेक्ट, यू अंडरस्टैंड। इसी वजह से ये जो है, ये जो शक्ल होगी, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। अब देखिए और चंद मिसालें इसी ऐसे ही, ये जो ऊपर दूसरे दो सेंटेंस दिए गए, गोवर हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, देयर आर नॉट एनी लेफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई नहीं बचा है। इफेक्ट क्या है प्रेजेंट का, तुम्हारे लिए बिस्किट इसमें कोई नहीं बचा है, क्यों, गोवर ने वो सारे बिस्किट खा लिए, अभी खा लिया, 10 मिनट पहले खा लिए, यू अंडरस्टैंड, ये मतलब है। ऐसे ही जिसको आप सेंटेंस 3 को देखेंगे, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, मतलब यह है कि इसको तो फ्री हैं, उन्होंने काम ख़त्म कर लिया, अब काम उनको उनको काम नहीं है उनको, ठीक है, इस वजह से वो आप फ्री है। अब देखिए ये प्रेजेंट का इफेक्ट था, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड इट। अब देखिए यहाँ पे चंद और सेंटेंसेस, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, काफ़ी वक्त से जानता हूँ। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से बीमार, ठीक है। आप देखिए अब फॉर का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, हम यहाँ रहे कितने साल तक, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए आप इन सेंटेंसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए आपको सोचनी पड़ेगी, वो ये है कि फॉर का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल, और फिर थर्ड वाले सेंटेंस में हियर का इस्तेमाल, सिंस फॉर हियर। फॉर हम टाइम ऑफ पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंस हम बिगिनिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हियर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनमें क्या होगा, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट के केसेस हैं। क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, ये एक ऐसी एक्शन है जिसमें जो स्टार्ट हुई है पास्ट से एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और ये प्रेजेंट मोमेंट तक चल रही है ये एक्शन, तभी हम सिंस और फॉर की फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
या इस तरीके की कंजक्शंस को यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए आप कि एक्शन एक्चुअली काफ़ी टाइम से, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी अरसे से इसको जानता हूँ। उसका मतलब है जो काफ़ी अरसे से है, ये पास्ट वाली एक्शन है, लेकिन ये अभी तक चालू है, अभी तक आप जानते हैं इसे, ठीक है। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, अभी तक वो बीमार है। पिछले हफ्ते एक्शन शुरू हुआ था, तब से वो बीमार था, पास्ट का एक्शन है, लेकिन ये प्रेजेंट मोमेंट तक चल रही है। ही हैज़ बीन इल, अभी भी बीमार है, सिंस लास्ट वीक, तभी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे देखिए, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। उसको तो 10 साल पहले हम इधर आए थे, हम कहीं और रहते थे, वहाँ से आए इधर रह रहे हैं, और 10 साल से चूँकि हम यहाँ रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, इस वजह से वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, प्रेजेंट तक ये एक्शन चल रहा है। इसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट फुल्ली। नाउ सी, दिस इज नोट फॉर यू, द फॉलोइंग एडवर्ब्स आर वर्ब फ्रेजेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट अपार्ट फ्रॉम दोज मैंशनड अबव, ठीक है। जैसे हमने फॉर की बात की, हमने सिंस की बात की, हियर की बात की, ये भी कभी कभार ये भी यूज़ हो सकते हैं इन सेंटेंसेस में। नेवर एवर, क्वेश्चंस में सिर्फ नेवर एवर, ठीक है। सो फॉर, टिल नाउ, येट, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड येट, येट, आगे बात समझ में। नेगेटिव क्वेश्चंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं सो फॉर, टिल नाउ, येट, लेकिन इनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डन दैट वर्क, ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, एट्सेट्रा। तो एक्चुअली आइडिया ये है कि अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू होती है, वो टिल नाउ, प्रेजेंट तक चालू रहेगी, चल रही है, ऐसी हालत में हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई एम आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट फुल्ली। I am leaving you here, will meet you in the next lecture. Okay, till then, goodbye.